Good morning, Anjali. Good morning, Shivani. Morning. Good morning, Anu. Good morning, Shivani. So nice Morning. to see you. Nice, nice, nice. So this So, is our weekly session from Talk to Big Ears. Talk to Big Ears is a listening service where we ask you to talk. We tell you that, listen, it's very important to start sharing. It's very important to start venting, whether it is anger, it is love, it is irritation, it is a problem. Start talking about it, because once you start talking, you realize it's human. You start listening to yourself, you start finding your own solutions, and so on and so forth. We talk about this every time. So I think a whole lot of you would have understood what we are all about. So today, like I was just discussing with Anu, what should we talk about? And she came up with something very interesting. I was thinking of talking about actually, love in the ordinary moments. But Anu had a very interesting point, and she said that it is very important that we stop following our guru or our teacher for everything. Because how long do we need a teacher for? How long do we need to read books and learn? How many times are people going to come and tell us what to do, what not to do? What about you? What about that person inside of you? तुम कब सीखोगे? अब इतना सब कुछ सीख लिया, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ हमने सुन लिया, तो वो क्या कहते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी विच आई हैड रेड. इट सेज, अब लफ्जों बयां अब सब खत्म हुए. अब लफ्जों बयां सब खत्म हुए, अब लफ्जों बयां का काम नहीं. अब इश्क है खुद पैगाम अपना, और इश्क का कुछ पैगाम नहीं. मतलब वी हैव लर्नड एवरीथिंग, हमने सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया. अभी भी हम सोचते हैं, व्हेन वी गेट इनटू ट्रबल, हु इज गोइंग टू कम एंड टेल अस हाउ टू डील विद इट. सो शी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, Anu. She says, if you meet the Buddha on the road, kill him. Because you've learned now you need to understand how to deal with your own problems. We have to be self sufficient. We have to now use all those learnings that we have had in and get them into our lives. कि वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वहां पर हम कैसे डीलिंग करें with all the education and all the knowledge that we have gained up till now. तो उस दिन एक किसी और का भी मैंने सेशन सुना. तो उसके अंदर था, दिस वाज ऑन यूट्यूब, वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट अ शिष्य एंड अ स्टूडेंट. अ स्टूडेंट एंड अ शिष्य, उसके अंदर फर्क क्या है? जो स्टूडेंट है वो वहां से सब कुछ लेकर आता है. वो पढ़ाई लिखाई, इंफॉर्मेशन सब कुछ लेकर आता है टीचर से. और जो एक शिष्य होता है वो क्या करता है? वो सब कुछ वहां पर छोड़कर आता है. वो एम्प्टी हो जाता है. वो वहां से अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया टीचर से. अब उसने जो शेड करना था, जो उसने अपना ईगो शेड करना था, अपनी प्रॉब्लम्स शेड करनी थी, वो सब कुछ शेड करके अब वो आगे बढ़ेगा. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज मैंने ये बहुत पैराडॉक्सिकल चीजें बोली हैं, दो तीन. वेलकम अन्नपूर्णा जी. तो ये दो तीन चीजें बहुत पैराडॉक्सिकल हैं. एक हमने बात करी कि अगर आप चल रहे हो तो आपको हर वक्त एक टीचर का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है. टीचर आपको खाली रास्ता दिखाता है. अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, किसी किस्म की कोई थेरेपी चाहिए, किसी भी किस्म का कोई हेल्प चाहिए, सो डोंट एक्सपेक्ट द पर्सन, द हेल्पर, द टीचर, द थेरेपिस्ट, द डॉक्टर टू वॉक विद यू टिल द एंड. You have to now stand up, and you've got it all. You've got it all. You just stand up and start walking on your own. You are a person with all the information. You are a person with all the knowledge. अब आपने उस सब चीजों को अपनी लाइफ में उतारना है. आपको कभी भी कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो आपके साथ पूरी जिंदगी चलता है, एक्सेप्ट योर फेथ.
That faith has to be in the supreme, in the universe, and that faith has to be on yourself. कि आप जो करोगे आप ठीक करोगे और you are the best version today. Tomorrow you are going to be a better version of yourself than today. And each and every day you have to keep improving and keep going and keep going and keep going. जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच जाते जहां पर आप सब कुछ लेट गो कर देते हो. You just have to flow. The trust, they say you have to trust the climb. Trust the climb, trust the fall, and you have to rise with grace. When you start trusting कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है. It is not happening to you. It is happening for you, Baba. I think I've repeated this many times over. Because we don't realize it when we are going through it. You know, when we go through a tough phase, we say, oh my God, सबसे पहला है कि why me? ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ कैसे हो गया? बट ये कोई ना कोई मैसेज लेकर आता है हर एक इंसिडेंट, हर एक एक्सपीरियंस. Because we have to zoom out and see the larger picture. Are we here forever? We are not here forever. What are we doing? We are here to experience. We are here to learn. And I think we've shared this also, that all the experiences that we have, all the learnings that we have, हमको ये सारा कुछ इकट्ठा करना है क्योंकि ये collective information है. We are going to add to the collective of the universe and we are going to deposit it there. Yesterday somebody was asking me, grounding कैसे करते हैं? So Anu, this is very interesting. And I said, you know, sometimes when you really meditated too much or when you go to a very high energy place, so you get a lot of tingling sensation all over and you don't know what to do with it. You don't know how to handle it. You don't know what to, you know, what's happening to you. Good morning, Dalit ji. So, समझ नहीं आती है क्या हो रहा है. Good And then morning. I was at this very high energy temple last year, and it was very difficult to take that energy. So and I don't know, something was happening inside my head. So I had a healer friend who was with me, and she said, "You please just sit down and do some grounding." And that was the best grounding experience I had. I sat there and I just took all this energy that was overflowing inside me. I just took it down and down further into the ground, into the core of the earth. And as you start sending that whole energy into the core of the earth, what happens? It balances you and it makes the core of the earth stronger. I feel with all that energy, then that energy can spread into so many more people, whoever need it more. तो ये कभी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है. Whatever is here right now is here only. We have to best utilize it. और अगर excess हो जाती है हमारे अंदर, when we can't manage it, then we give it back to Mother Earth. And from Mother Earth, a lot of people can take it whenever they need it. That is my concept. And believe you me, that experience really helped me because that excess energy, the excess tingling sensation went right into, through my feet, it went right into the core of the earth. And that's where it can all come out from. So the point I'm trying to make here is कि ये जो सब कुछ होता है हमारे साथ, जिसके अंदर एनर्जी गेम्स भी होती हैं, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, सब कुछ होता है. ये सब कुछ हमारे को कुछ सिखाने के लिए हो रहा है. और यहाँ पर एक, again, I had read this little 2-3 lines and it fits in very well over here. So it says, जिंदगी के रंग है जुदा जुदा, जिंदगी के रंग है जुदा जुदा, कभी खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, और फिर खुदा खुदा. So we have all these phases in our life which we have to go through, and once we go through these, तभी
हम बोलेंगे कि कोई रिग्रेट्स नहीं है हमारी लाइफ में, वी हैव डन एवरीथिंग एंड नाउ आई एम गुड टू गो. तो व्हेन यू हैव बीन गिवन दिस ब्यूटीफुल लाइफ, experience everything na. Why don't you want to have all those fruits that are there? Why do you want to fast? I keep saying this to so many of my friends who fast. I said, इतना कुछ दिया है तुम्हारे को यूनिवर्स ने, to enjoy it, to experience it, to share it, to spread it. Even the love that we have, we keep craving for love all the time. अरे दोस्त भी बनाते हो तुम, अपनी फैमिली से भी एक्सपेक्ट करते हो, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, ऑल द टाइम. I mean, I can tell you this, we are three siblings, and after our parents passed, we realized all three of us used to feel the same thing, that the parents love the other one more. And everybody, I mean, I always thought that my other two siblings were getting a larger share of my parents' love, and they always thought that I was the special one. So it is all a big hodgepodge. That's because everybody wants. How many of us give? How many of us are giving love here? How many of us are giving understanding? How many of us are trying to understand the other person's situation? हमको अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, हमको अपने लिए प्यार चाहिए, हमको अपने लिए ही सब कुछ चाहिए. तुम हो कौन? कौन हो तुम? Who am I? Maharishi Ramanna. Right, Anu? So how many people have read it? I don't know if anybody's read it over here, but when you keep going behind and you realize that you are basically only the seer, तुमने खाली देखना है, तुम खाली देखने वाले हो. एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो ये फिजिकल लेवल पर हो रहा है. दुख जो आता है वो फिजिकल लेवल पे आता है, सुख भी जो आता है फिजिकल लेवल पे आता है. फिजिकल लेवल परमानेंट है. डे बिफोर yesterday I met somebody and we were talking. कुछ उनको they were talking about houses, and someone said, अरे ये घर बड़ा अच्छा है, वो घर बड़ा अच्छा है. So I said, now I've realized that nobody owns anything. None of us own anything. हम जब कोई घर लेते हैं, चाहे हम उसको खरीदें, चाहे हम उसको रेंट पर लें, we have to pay a certain amount to be able to stay there. तो वो चीज परमानेंटली कभी भी हमारी नहीं होती. Even if we buy it, it is not mine. It can never be mine. I am paying that amount of money for myself to be able to live there for that much time. Doesn't mean I own it. After 30, 40 years, somebody else will own it. 40 years earlier, somebody else was owning it. So is there any permanency in ownership? Never. Nothing is permanent. No ownerships are permanent. तो हम क्या, what are we talking about here? कि ये सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ फिजिकल लेवल पे है. तो असली लेवल क्या है? असली लेवल क्या है? असली लेवल is that person, is that observing individual जो खाली पीछे बैठकर देख रहा है. लाइक कबीर ऑल्सो सेस, गुरु और चेला अंदर खेलते हैं, कि गुरु भी है अंदर तुम्हारे और वो चेला भी है तुम्हारे अंदर. तो वो दोनों एक दूसरे को, वो जो गुरु है वो चेले को देख रहा है, उसको खेलते हुए देख रहा है. तो वो गुरु कौन है? वो गुरु इज द सीयर. दैट इज द थिंग विच इज ऑब्जर्विंग, विच इज सीइंग, विच इज द विटनेस. और वो चेला कौन है? चेला हम है, हम बंदर. और जंपिंग अराउंड ऑल द टाइम, वांट दिस वांट दैट. लाइक आई सेड, जिंदगी के हैं रंग जुदा जुदा. कभी खिलौने, कभी इश्क, कभी पैसा, फिर अल्टीमेटली खुदा खुदा. हम इधर से उधर भाग रहे हैं, जरूरत कुछ नहीं है. बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो. Be a witness and understand what is happening and learn from that. क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है. हम जब यहाँ पर आए थे तब हम ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे. Who are the people we are going to meet?
who are the people we have to give to, who are the people we have to take from to balance out our karma. So, well, this is what happens when you don't think of a topic. You can just go off anywhere you take off. It's like parasailing. You just take that little bird and you just jump off the cliff and see where it takes you. So that's exactly what I'm doing today. But if any of you would like to add anything, I can just keep going on and on. Anu, Shivani, Annapurna ji, Dalip ji, anybody. Just to give an idea of discussion, I have also started believing over the years of experience that most of our stresses, pains, problems arise from expectation. This word expectation, this kills all joy. Yeah, very true. Just Very just true. a thought. Expectations reduce joy, they say. Expectations reduce joy. Yeah. बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जॉब में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो सब हमारी इंटरप्रिटेशन है उसी कॉइन के। एक तो इस दुनिया में कॉइन के दो साइड्स ही नहीं होते, कॉइन के भी मल्टीपल साइड्स होते हैं। तो हर साइड का ही नजरिया अलग है। उसी चीज को 15-16 तरीकों से देखा जा सकता है। तो 15-16 एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं उसी चीज से। अब सारी तो फुलफिल नहीं हो सकती, पर जिसकी फुलफिल नहीं होती वो उदास हो जाता है। किसी की फुलफिल हो जाती है। अब 3 बच्चों की माँ अलग अलग प्यार करती है या एक जैसा प्यार करती है, जो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से वो सुखी होगा या दुखी होगा। Exactly. Exactly. Yes. So Nice. Thank you. Thanks for that sharing. Expectations, very important point. हमें लगता है कि अगर हम उनके साथ रिलेटेड हैं, अब जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे या हमारे दोस्त, कि वी आर कनेक्टेड टू देम, सो वी हैव अ राइट, we have a right over this and that and their attention and their love and everything other than that. But yes, ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि हम सब अपने आप को insufficient सोचते हैं. We feel we are not enough. We feel that we lack something. But the best part of it is that we have it all. We absolutely have it all. And like Oprah Winfrey says, may your cup runneth over. कि तुम्हारे अंदर जो होगा तुम वही तो दोगे. So अपने आप को तो पहले भरो. Don't come from a place of lack into any relationship. It should always start from abundance. Go ahead with abundance and you will see how abundant you become with everything. And it's all there around you. खाली ट्यून करने की बात होती है. You just have to get to the frequency. If you start from fear and lack, that is not taking you anywhere. Start from abundance. Abundance. Yeah. in the real world, a lot of these big successful businessmen, when they have a great idea, they don't stop to think where will the money come in from. Yeah. If they have a good idea, they say money is lying with VCs and with banks and with rich people. वो दे देंगे, उनको भी तो कोई जगह चाहिए देने के लिए. But a smaller thought वाला बंदा will get an idea and then get stuck on that कि यार आइडिया तो अच्छा है, पैसे कहाँ से आएंगे. वो अबंडेंस में नहीं बिलीव कर रहा. वो कह रहा है कि मैं क्या अचीव कर सकूंगा, विदाउट रियलाइजिंग कि हर एक का अलग अलग स्पेशलिटी थी. एक के पास पैसे थे, एक के पास आइडिया था, एक के पास ह्यूमन रिसोर्स थी. तुमको खाली सबको इकट्ठे करना है. तो ये दिस इज जस्ट द रियल वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ऑफ अबंडेंस. यू हैव टू रियलाइज दैट देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. आपको आइडियाज नहीं आ रहे, आप आइडियाज वाले भी बहुत लोग बैठे हैं, आप उनको इकट्ठा कर लो. पर ठीक है, whenever it dawns, it dawns. You know, Deepak Chopra had once said this. He said, when I was in practice, so he met somebody, a very learned person, and that person said that you start working in the area of quantum physics and you start focusing your energies on this. And he said that where is the money going to come from? How am I going to feed my family? So he said, there is so much money around, can't you see?
It's all over the place. You start doing this and the money will come. And that's exactly what happened. There was no stopping him after that. If you start from abundance, you reach to further abundance. अन्नपूर्णा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? यस मैम, थैंक यू। टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, अननोन टॉपिक्स। देयर इज अ वास्ट फील्ड ना, अगर टॉपिक है तो वो लिमिटेशन हो जाती है उसी के वो करना। एक तो आप बोल रहे थे ग्राउंडिंग का, तो वो आई डोंट नो इन नॉर्थ इंडिया इट इज देयर और नॉट। इन साउथ इंडिया हम मंदिर, ज्यादातर मंदिर जाते ही है, कभी कभी कुछ लोग रोज मंदिर जाते, घर के पास है दूर है, अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन। एंड कभी कुछ लोगों का रूल भी रहता है ना, मैं भले 4 बजे उठ के मंदिर जाके आऊंगा, ऐसे पहले के लोग करते थे। लेकिन वहां एक ये है कि आप मंदिर आके बस प्रदक्षिणा करके एकदम निकल नहीं सकते, आई हैव टू सिट फॉर 2 मिनट्स इन दैट मंदिर। वो रिवाज है ही। बड़े लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, वो तो घूमते रहते, बोले नहीं 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। अब आज आपने जब ग्राउंडिंग बोला, पहले क्या, मंदिर इज नॉट जस्ट अ वर्शिपिंग प्लेस, एनर्जी है। भले वो नोन था, हम लोगों को नहीं था, लेकिन वी हैव टू सिट देयर एंड देन, तो वो इसीलिए था। आपने बोला पीछे से स्विच बंद कर दे इसका। हेलो हेलो, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, सो एक तो वो था ग्राउंडिंग के लिए रिचुअल पहले से हमारे उसमें ही जुड़ा गया है, वो रिवाज में ही जोड़ गया है। भले कुछ पेरेंट्स को जानकारी है नहीं है, दे आर पासिंग ऑन इट टू दी नेक्स्ट जनरेशन। वो इसीलिए कि हम पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करें, उसको ग्राउंड करें। वो हम बैठ जाते तो ऑटोमेटिकली हो भी जाता है, किसी को नॉलेज है नहीं है, अर्थ तो अपना वो काम कर ही रहा है, ऐसे मुझे फील होता है। देन मैडम ने बोला लव के पार्ट, जैसे पेरेंट्स है, 3 सिबलिंग्स है, तो वो सोचेंगे कि मुझे प्यार नहीं मिला, ये प्यार ऐसे कम ज्यादा होता ही नहीं है। पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए सभी बच्चा एक जैसा है, प्यार करते ही है, वो अननोइंगली फ्लो होता है। इधर हम रिसीव करने वालों को संवेदना होना चाहिए कि भाई वो तो अनवरत बह रहा है। जब वो समझ में आता है तो फिर अरे ये मैं कहाँ, मतलब अपना वो सोच रहा था कि भाई मुझे कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है। जो प्यार करता है ना, चाहे मेरे बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, उसको भी मैं उतने ही प्यार करूंगी जिसकी वो फ्लुएंसी है वो। और जैसे मैम ने बोला कप को फिल करो, अंदर हम वो अनकंडीशनल लव से जब भर जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होती है एवरी पार्ट, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या सिबलिंग है, जैसे उसमें कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि वो आदमी की बस की नहीं होती है। जैसे हम घर में होता है ना, खीर ज्यादा बनता है, हम पूरे उसमें आड़ोस पड़ोस में बांटते हैं, ऐसे ही कि कप फिल हो गया तो ओवरफ्लो होता होना ही है, आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए गुरु लोग बोलते हैं ना, अपने आप को प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि वो ऑटोमेटिकली सबके तरफ फ्लो हो जाए। ये मैडम का वो 3 पॉइंट्स था, तो मुझे लगा कि शेयर करो। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सच अ लवली शेयरिंग अन्नपूर्णा जी, कितना अच्छा आपने इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि एक्चुअली ये होता है कि मंदिर में, एंड इट आई थिंक वुड रियली वर्क। मेरी शायद ये गलती थी। I'm actually talking about Kasar Devi. It was uh, resonating with so much energy that I could not take it, and I had to then go back to my room and I did my uh, grounding. And I think if I would have done what you just suggested, I would have been in a better position. So thank you so much for that sharing. ये बहुत ही हमारे जो पहले पुराने लोग किया करते थे, हर एक चीज में कोई ना कोई मतलब था, और हम उस चीज को इग्नोर करते रहते थे, और हमको लगता था कि नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट नाउ, वेरी गुड पॉइंट, I think we should keep that in mind. Thank you so much for sharing that. Yes, thank you. Thank you so much. And I see that Shwani has left. I wanted her to share before I could ask her. She's left.
Yeah. मैं बस अन्नपूर्णा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कहीं पर हम जाते हैं तो 2 मिनट रह के आते हैं, इवन किसी पार्टी में जाते हैं या किसी वर्कशॉप में जाते हैं, तो जो मेन इवेंट हो गया अगर हम तुरंत से वहां से आ जाते हैं तो ठीक है, हम घर में टाइम से पहुंच जाएंगे जो भी है। बट अगर हम उसके बाद थोड़ा वहां पर बैठते हैं, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जो आए हैं उनसे हाय, मेन स्पीकर के पास तो सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन जो आए हैं, जो वहां पर हैं, जो कितने लोगों ने 2 दिन से 3 दिन से वो तैयारी की होगी, लाइक यूजुअली वी गो टू अ हाउस, तो वो जो मेड होती है उसने कितना 3 दिनों से खाना बनाया होता है, वो होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है, उनको बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, थैंक द होस्टेस एंड होस्ट, तो है वो तो है ही, बट जो आसपास है वो ही एक ग्राउंडिंग की चीज, मतलब एक यूजुअल जो नॉर्मल मंदिर के अलावा भी, कल हम वो जो मैं वर्कशॉप के बारे में पहले बोल रही थी, वहां पर सर ने जाने नहीं दिया लोगों को जब वो मेन चीज हो गई। बोले कि अगर आपका कुछ इमरजेंसी है, जैसे कि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डॉटर, somebody देन यू कैन लीव, बट वेट फॉर सम टाइम। एंड देन फिर वो बैठे और थोड़ी देर और आधे घंटे थोड़ा बहुत डम शेराट्स कुछ तो किया, कुछ ऐसे यूं ही, एंड देन ही सेड नाउ दिस इज ऑफिशियली ओवर। बिकॉज उस एरिना में काफी एनर्जी होती है, जहां पर भी कोई जैसे पूजा हुई है, या कोई जैसे वर्कशॉप हुई है, या कोई आपने डिस्कशन किया है, या फैमिली गैदरिंग की है। कई बार होता है ना, हम लोग टेबल पे बैठे रहते हैं, खाना खा लिया, पेट तो भर गया, आप तो एक आधा भी रोटी नहीं खा सकते, आधा कौर भी नहीं खा सकते, लेकिन वो टेबल से उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि सारे लोग मतलब कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी बैक, है ना। और एक और जो चीज मेरे को आई, मेरे को बस एक, मैं तो माँ नहीं हूँ, बट इंदिरा गांधी का कोई एक स्टेटमेंट था कि वो जब मैं छोटी यंग माँ थी, तो ये राजीव और जो संजय है, वो मेरे दोनों मतलब जब मैं लेटती थी तो इधर लेफ्ट में राइट में दोनों आके लेट जाते थे। तो मैं सोचती थी यार, मेरे तो 2 बच्चे हैं तो आई कैन गिव देम लव एंड अफेक्शन और सहला के, लेकिन ये जो जिनके 3 या 4 बच्चे, ये कैसे अपने बच्चों को प्यार करते होंगे। फिर then she was now at an other age, and then she said later I realized कि 2 हो 4 हो, एक माँ तो फिर प्यार ही कर सकती है। वो जो अन्नपूर्णा जी बोल रही थी कि माँ तो माँ ही होती है। दैट्स माय 2 bits। Oh, lovely. Thank you for I sharing one. suddenly recollected something. If you Hmm. remember when we were kids, तो घर में रेगुलरली साईं बाबा के भजन होते थे, और वहां पे जैन साहब आते थे गाने, और वो मूर्ति जी और वो 3 4 जो जने थे, उनका स्ट्रिक्ट रूल यही होता था कि भजन खत्म होते ही किसी को नमस्ते भी नहीं करनी, बाय भी नहीं बोलना, चुपचाप सीधा अपने घर जाओ और अपने घर जाके बैठो, बिना किसी से बात किए 5 मिनट के लिए। तो मतलब फिर यही था ना कि यहाँ की एनर्जी इकट्ठी जो हुई हैं, उनको फजूल में इधर उधर डिसिपेट मत होने दो। जस्ट टेक देम एज इट इज टू योर रिस्पेक्टिव हाउसेज एंड देन स्प्रेड देम विद इन योर हाउस। Absolutely. And recently only I have learned this, and for the same reason that when you go on a pilgrimage, आपको सीधा वापस अपने घर आना चाहिए। आप हम्म। रास्ते में ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए कि अच्छा चलो 2 दिन हम उधर घूम आए, हम उधर कहीं और चले जाएं, क्योंकि वहां पर आप जो काम करने गए हो, जो चीज गैदर कर कर आ रहे हो, वो सीधे अपने घर लेकर आओ। एग्जैक्टली, इट्स द सेम पॉइंट। हम्म। यस। पर आजकल कुछ यंगस्टर्स क्या करते हैं कि चलो गंगा नहा ले, पुराना सारा पाप धुल गया, अब निकल के नए शुरू करते हैं, लेट्स गो एंड पार्टी। घर जाने से पहले ही एक सारे तो इकट्ठे बैठे ही हुए हैं, एक पार्टी हो जाए उसमें। वो भी ठीक है। वो भी हाँ। वो लाइक आई सेड, जिंदगी के है रंग जुदा जुदा। हाँ। है ना, हाँ, सो तो उसको, सारे रंग भी तो एक्सपीरियंस करने हैं। उसके दरबार में तो नियत ही काउंट करती है, एक्शंस का तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम जिस दिन उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, देन एवरीथिंग हैज द सेम एनर्जी एंड एवरीथिंग हैज द सेम एवरीथिंग इन इट। कुछ है ही नहीं, कुछ अलग भी नहीं है। पेड़ भी हम है, ये पत्ता भी हम है, फूल भी हम है, टेबल भी हम है, और हम ही पत्ता है, और हम ही फूल है, और हम ही पहाड़। तो वो लेवल तक जाने के लिए आई थिंक हमारे को ऐसे
100 कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. ज्यादा ही What do you घमंडी हो say? जाएगी. Wonderful, wonderful. Yeah. I need to log out. All the best. Thank you. Okay, thank you. Thank you. for joining. Thank you. Thank you. Thank you. I'll stop the recording.